Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Leo Ascendant and how the month of September 22 is going to pan out for the Leo Ascendant people. Now Leo Ascendant people are very majestic people. If Sun is well placed in their horoscope, then they get a lot of name and fame in their lifetime and people get attracted towards them because of their magnetic personality. Leo ascendant people usually have a very high ego and they do not work at a workplace where people do not respect them. So for a Leo ascendant, their respect and reputation or prestige is far more important than money. So people belonging to Leo ascendant usually get alone after their sunshine days are over. And just like an old lion who gets kicked out from the herd, they also spend bad time in their old age because of how they behave with their family and friends in their youth and their glory time. And that's why it becomes very critical for the Leo ascendant people to control their ego and keep a very good relationship with people around them throughout their lives. That is the key for them to remain successful even in the old age. So let us talk about how the planet's placement is in the month of September. So ascendant Lord Sun is passing through the ascendant itself till 16th of September, and this is a very good position for Leo ascendant natives. Sun passing through its own house would mean an increase in reputation, prestige and fame, but it also increases ego, and that is something which Leo ascendant people need to control in the first half of September. Sun is going to be joined here by Venus, and Venus is the lord of 10th house of action and third house of courage for the Leo ascendant people. So first house represents self and personality, and Venus joining here would mean that in the month of September it becomes very important that how Leo ascendant people represent themselves in the professional arena. A strong and confident leadership style would certainly bring laurels at the workplace in September. Let us look at Mercury. Mercury will be posited in the second house, and this is the own house for Mercury. So Mercury is a very important planet for Leo ascendant people because it rules both the houses of wealth. So second house as well as 11th house both are owned by Mercury. Second house is for self-earned wealth, 11th house is for gain. So very important planet if you look at from the monetary angle. What it indicates is that you can go gain through the means of brokerage or commission, through the family, friends, or through your speech. Especially a lot of Mercury ascendant people are very good businessmen and they get an opportunity to speak a lot in the public domain. Or, of course, public speaking itself is also a very good profession these days. So, Jupiter is also going to cast its aspect on the second house. So, post 16th of September, when Sun will also join Mercury here, then the chances of solid earning through family and self-earned wealth will be further fortified in the month of September. So if you look monetary gain wise, the second half of September will be better than the first half. Jupiter is the lord of fifth and eighth house for the Leo ascendant people. Now fifth lord is passing through the eighth house, but in the month of September it will be passing through the constellation of Saturn, and Saturn itself is posited in the sixth house. So people who are in the occupations related to the fifth house, so people who are artists, education related people, food industry and speculators, they will continue to face headwinds in the month of September. All those people will work extremely hard with very little gains to show during this time frame. But if you are a researcher, astrologer, or in technical work, then again, this is a great time to increase your knowledge in your domain because Jupiter itself is the significator of knowledge. And if you happen to explore the areas that are related to 8th house, you are bound to gain a lot of knowledge during this time frame till April 2023. Saturn is now posited in the 6th house, and this Saturn will demand continuous hard work if you are in the service or in the business, because for Leo ascendant, Saturn is the owner of both the houses of service as well as profession or business. Good part about Leo ascendant is that Mars is going to pass through the 10th house. This will provide them a lot of energy, and the fruitful trine that gets created between Saturn and Mars in the month of September would mean people in service will continue to bring a lot of energy at the workplace. People who are unmarried will need to wait as they
right now are not getting any support of Jupiter. If Jupiter was aspecting the seventh house or was aspecting its lord, then something might have worked out. But since there is no support of Jupiter, they will have to wait in the month of September. Mars is the first rate benefic for Leo ascendant people, and during this transit, it is going to benefit Leo ascendant people if they are in a career that is related to Mars. So, people who are in the professions related to property, chemicals and fuels, or petrochemicals, specialty chemicals, defense sector, weaponry, then this Mars will continue to support in their profession till Mars is positioned here. So Mars entered in the 10th house on 10th of August and it will remain stationed here till 15th of October. Quite a long time for you to succeed in the professional arena. Now, there are also certain dates when a person needs to be careful, and these are the dates when moon passes through your 6th, 8th, and 12th house. So, for Leo ascendant people, the days in the month of September are 7th and 8th of September, 12th to 13th of September, and 21st to 22nd of September. These are the dates when Leo ascendant people needs to be very careful. Overall, this is going to be a pretty good month for Leo ascendant people. Ascendant Lord is passing through the ascendant, the 10th Lord is joining the ascendant. So it all depends on what kind of a perception you create at the workplace, how you handle yourself in the professional arena, and of course, money wise also the month looks pretty fine. So overall, this is the summary for Leo ascendant people for the month of September. If you've liked my video, please do subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि सिंह लग्न वालों के लिए सितंबर 2022 का महीना कैसे साबित होगा। देखिए, सिंह लग्न के जो लोग होते हैं ये काफ़ी मैजेस्टिक लोग होते हैं, यानी जो भी रुबाबदार लोग हैं, असरदार लोग हैं, जिनको आप देख के बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। इनमें से बहुत से लोग सिंह लग्न में आते हैं। इन लोगों को अगर सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी हो, यानी लग्न में ही बैठा हो, द्वितीय, चतुर्थ या 11वें भाव में बैठा हो, तो इन लोगों को काफ़ी नाम, शोहरत, सफलता मिलती है जीवन में और लोग इनके तरफ खींचे चले आते हैं क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ऐसी रहती है कि व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाता है। यूजुअली क्या होता है, जो सिंह लग्न के लोग होते हैं इनके में अहम की भावना बहुत ज़्यादा होती है। व्यक्ति का ईगो बहुत बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से इन लोगों को लगता है कि ये काफ़ी बड़े व्यक्ति हैं। होते भी हैं कई लोग काफ़ी, क्योंकि सिंह जो लग्न है वो एक राजा का लग्न है, तो राजा की तरह ये लोग घूमते फिरते हैं। बिल्कुल आप जैसे लियो घूमता है उसी तरीके से इनके सारे ट्रेड्स होते हैं। लेकिन जब सिंह बूढ़ा हो जाता है तो उसको उसी का कुनबे से बाहर कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से अगर ये लोग जवानी में जब ये अपने रुबाब पे होते हैं, शबाब पे होते हैं, तब अगर ये आपस के लोगों से, फैमिली मेम्बर्स से, जितने भी इनके जान पहचान के लोग हैं उनके साथ अगर बुरा बर्ताव करते हैं तो वही बुरा बर्ताव इनको सूद समेत वापस मिलता है। जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो कई बार तो ऐसे लोगों को घर से भी निकाल दिया जाता है। कई से लग्न के लोगों का जो बुढ़ापा होता है वो बहुत अकेले में और दर्दनाक तरीके से बीतता है। तो सिंह लगने वाले लोगों के लिए उपाय वही होता है कि आप ह्यूमिलिटी अपनी ना छोड़िए, ईगो को एक लेवल तक आकर कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि ये जब आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, बेकाबू हो जाना जिसे बोलते हैं, तो उसके काफ़ी बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं सिंह लग्न वालों को। तो अच्छा यही होता है इन लोगों के लिए कि ये अपने अहम को कंट्रोल करें और आसपास जितने भी लोग हैं उनके साथ पूरे जीवन भर अच्छे संबंध बना के रखें। तभी आप देखेंगे कि इनका बुढ़ापे में भी सुख समृद्धि इनके साथ बनी रहती है। अभी हम लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश सितंबर में लग्न भाव से ही निकलेगा, तो ये 16 सितंबर तक प्रथम भाव में ही बैठा रहेगा। तो जब लग्नेश लग्न से जाता है तो कोई सा भी लग्न हो, स्थिति हमेशा अच्छी ही कहलाती है। यहाँ से जाता हुआ सूर्य व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ा के जाता है, उसको नेम एंड फेम देता है, लेकिन ईगो भी बढ़ाने का काम करता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है सितंबर के महीने में। यहाँ पर सूर्य का साथ देने के लिए शुक्र विराजमान होंगे सितंबर में। शुक्र सिंह लग्न वालों के लिए तृतीय और दशम भाव का स्वामी होता है, तो तृतीय भाव से आपके एफर्ट्स देखे जाते हैं, क्या आप प्रयत्न कर रहे हैं। दशम भाव से आपका कर्म देखा जाता है। तो शुक्र भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है सिंह लग्न वालों के लिए। यहाँ पे ये प्रथम भाव में आके बैठ जाएगा। दशमेश का प्रथम भाव में बैठना लग्न स्वामी के साथ ही ये दिखाता है कि सितंबर के महीने में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने आप को
अपने कार्यस्थल पे किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। परसेप्शन इज द रियलिटी जिसे हम कहते हैं। तो अगर आप एक लीडरशिप स्टाइल बना के सामने वाले को दिखाएंगे, स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट जिसे हम बोलते हैं कि हाँ ये व्यक्ति लीड कर सकता है, इस बंदे में कुछ बात है, थोड़ा सा अगर आप अपने को रुबाबदार रौबीले तरीके से पेश करेंगे तो ये आपके लिए कार्यस्थल पे बहुत अच्छा फल लेकर आएगा। क्योंकि वैसे भी सिंह लग्न वालों को लीडरशिप ट्रेट्स उनमें होती हैं, तो अगर आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं सामने वाले को, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इस लग्न के लिए। एक बार बुध को भी नजर डालते हैं। बुध यहाँ पे द्वितीय भाव में बैठे रहेंगे जो कि उनके स्वयं का हाउस है। बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है सिंह लग्न के लिए, क्योंकि बुध द्वितीय और 11वें भाव का स्वामी होता है और दोनों ही भावों का संबंध धन के साथ आता है। द्वितीय से हम स्वयं की कमाई हुई दौलत देखते हैं, 11वें भाव से हम लाभ देखते हैं, जिसमें हर तरह का लाभ, लेकिन मॉनेटरी गेन्स भी उसमें आते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय में बैठना यानी कि आप ब्रोकरेज कमीशन के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, अपने परिवार के थ्रू या अपने दोस्तों के थ्रू या आपकी वाणी का प्रयोग करके भी आप धन कमा सकते हैं सितंबर के महीने में। यहाँ पे अच्छी बात जो हो रही है वो ये है कि गुरु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पे। गुरु अष्टम भाव से 7वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे, तो ये इस भाव को और मजबूत कर रहे हैं। तो सितंबर के महीने में अच्छा पैसा कमाने का मौका है अपने परिवार के थ्रू, या आप अपने स्वयं की इनकम भी इस महीने में बढ़ा पाएंगे। तो कमाई के लिहाज से, पैसे की दृष्टि से सितंबर का महीना बहुत अच्छा है सिंह लग्न वालों के लिए। अगर गुरु की बात करें तो गुरु पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और अभी अष्टम भाव का स्वामी अष्टम से ही गुजर रहा है। हालांकि ये इस समय शनि के नक्षत्र से गुजरेगा, लेकिन शनि स्वयं भी छठे भाव में बैठा हुआ है, तो कोई ऐसा खास लाभ वाली स्थिति नहीं बनती है। लेकिन जितने भी लोग पंचम भाव से जुड़ा व्यवसाय करते हैं उनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, इनको दिक्कतें आएंगी सितंबर के महीने में। तो आप आर्टिस्ट हैं, जैसे पेंटर स्कल्पचर्स हो गए, या आप शिक्षा से जुड़े हुए व्यवसाय में हैं, खाने पीने से जुड़ा व्यवसाय करते हैं, या फिर आप स्पेक्यूलेटर हैं, शेयर बाजार से संबंधित रखते हैं, तो भी सितंबर के महीने में तकलीफ तो होगी, अड़चने बहुत आएंगी। इन सारे प्रोफेशंस में रहने वाले लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन इस समय ऐसे रिजल्ट दिखाने लायक कुछ माहौल बनेगा नहीं। लेकिन अगर आप अष्टम भाव से जुड़ा हुआ ही व्यवसाय में हैं, जैसे आप ज्योतिष्य में हैं या आप रिसर्चर हैं या आप कोई भी तरह का तकनीकी कार्य करते हैं, तो इस सितंबर का महीना बहुत अच्छा है अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। देखिए गुरु ज्ञान का कारक है, तो ज्ञान का कारक अपने ही भाव से गुजर रहा है और अष्टम भाव गूढ़ विद्या से भी संबंध रखता है। तो आप किसी भी चीज को डेप्थ में जाके पढ़ सकते हैं इस समय में। अगर आपकी लाइन 8वें भाव से रिलेटेड ही है, यानी इंश्योरेंस में है, एक्चुरीज में है, टैक्सेशन रिलेटेड चीजों में आप इन्वॉल्व हैं, या एस्ट्रोलॉजर, रिसर्चर्स या टेक्निकल फील्ड से संबंध रखते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश कीजिए। सितंबर के महीने में आपको बहुत लाभ होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो गुरु का उपयोग यानी ज्ञान प्राप्त करना ही है, तो इस प्लैनेट को आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं पूरे 2023 अप्रैल तक, क्योंकि तब तक गुरु यहीं बैठा रहेगा। शनि 6वें भाव में विराजमान है। शनि सूर्य दुश्मन है, लेकिन सिंह लग्न के लिए छठे और 7वें दोनों भाव का मालिक होता है। तो 6वें भाव से आप नौकरी देखते हैं, 7वें भाव से आप धंधा देखते हैं, तो दोनों चीजों का मालिक शनि ही कहलाता है सिंह लग्न के लिए। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी बात बन रही है वो ये है कि मंगल दशम भाव से गुजर रहा है और शनि के साथ नव पंचम योग कर रहा है। मंगल और शनि भी आपस में दुश्मनी है, लेकिन जो नव पंचम एंगल जिसको हम बोलते हैं ट्राइन अंग्रेजी में, ये दो दुश्मन लोगों के बीच में भी अच्छा संबंध बना देता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात हो रही है। तो शनि की जिनकी महादशा चल रही है उन सब लोगों के लिए भी ये समय सर्विस के लिहाज से अच्छा निकलेगा, क्योंकि ये लोग मंगल की ऊर्जा का उपयोग कर पाएंगे कि ये अपने कार्यस्थल पे काफी ऊर्जा लेके आएंगे, जिसकी वजह से इनके काफी बिगड़ते काम भी बन जाएंगे इस समय में। लेकिन यहाँ पर अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा सितंबर के भी महीने में, क्योंकि शनि के ऊपर ना तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है और ना 7वें भाव का संबंध गुरु के साथ आ रहा है। इसलिए उस लिहाज से ये महीना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। लेकिन जॉब के लिहाज से ये महीना सिंह लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा है। मंगल सिंह लग्न वालों के लिए योग कारक होता है, क्योंकि ये आपके एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी बनता है, चतुर्थ और नवम भाव का। तो मंगल योग कारक ग्रह होने की वजह से हमेशा फायदा दिलाता है सिंह लग्न वालों को। तो जितने भी लोग मंगल से जुड़ा हुआ ही व्यवसाय करते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड धंधों में हैं, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, डिफेंस सेक्टर, या इवन जितनी भी
आपके व्यवसाय आते हैं जिसका संबंध मंगल के कारकों के साथ है, वो सारे के सारे प्रोफेशंस में मंगल उनको सपोर्ट करता रहेगा। 10 अगस्त को मंगल की एंट्री यहाँ हुई थी और 15 अक्टूबर तक यहाँ बैठा रहेगा। तो ये पूरा का पूरा समय अगर मंगल से जुड़े व्यवसायों में हैं तो सिंह लग्न वालों के लिए बहुत लाभकारी होगा। अब ऐसे भी कुछ दिन आते हैं महीने में जब व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए। ये वो दिन होते हैं जब चंद्र आपके 6, 8 और 12 से गुजरता है। तो सिंह लग्न वालों के लिए जो ध्यान देने वाले दिन हैं वो हैं 7 और 8 सितंबर, 12 और 13 सितंबर, और 21 और 22 सितंबर। ये 6 दिन में थोड़ा संभल के रहिए और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालिए। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सिंह लग्न वालों के लिए भी अच्छा ही समय है। लग्न स्थान से लग्नेश का जाना और बुध का अपने भाव में बैठना, द्वितीय भाव में गुरु की दृष्टि होना, तो परिवार के लिहाज से, स्वयं के कमाए हुए पैसे के लिहाज से और व्यक्ति की खुद की सेल्फ डेवलपमेंट के हिसाब से सारा ही समय अच्छा है। ये मंगल का भी दशम भाव में जाना, यानी कि प्रोफेशनल एरिया में भी आप काफ़ी अपनी एनर्जी लेकर आएंगे जो कि बाकी लोग भी नोटिस कर सकेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।